Okay. Ma'am, can we do one thing? Yes. That, ma'am, we will practice question that I am supporting, ma'am, but we can also do one thing, that topic Good wise morning, that ma'am. important, What each was? chapter important ma'am, each topics which are important in chapters, we should practice that also. What I'm planning actually, what I am planning it is actually I will prepare one day prior, I will prepare question, and in your class group I will add that question. And you have to learn that particular question and you have to tell me the next day, whichever day my class. Well, that way I am planning actually. Will it be good? Because you will get, because you know the questions which you have to prepare. What I told? Yes, ma'am, it is good, ma'am, but participation is not 100%. Na? I know that is now. one problem. Some change you will observe in my class December time. That I can say. Yes, ma'am. Okay, but I am planning in this way only. If any other way you want, or in the simple file way, I will just make a file and I will just share, because any other means I am not getting it. Okay, Okay. ma'am. Okay, children. Let's start our class. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. In the last class, we have discussed about modern periodic table. Okay, and the number of groups and periods we have already discussed. Good morning. Yes. Good morning, beta. Good morning. Okay. So, screen is visible to you all. Yes, ma'am, it is. Yes, ma'am. Okay, and up to here, I think it was over. I already told you how many groups and how many periods are there in the modern periodic table. Isn't that? And we have started Yes, ma'am. periodic properties, I think so. I will give more stress to periodic properties. Okay, so understand it nicely, because this question is asked in various different manners. Okay, related to this question. So many questions are asked related to this. So I have little bit more slides I have added to explain this particular topic again. Okay, so what it is, periodic properties, it is there. Periodic properties, first of all, question will be there, what are periodic properties? Okay, and I have already explained what are periodic properties. Can anybody tell me what are periodic properties? Can anybody tell me? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, periodic properties are some similar properties of groups of atoms. Groups of means elements present in specific group or in means periods. They have some common property, like in group 1 we have alkaline, group 1 and 2 we have alkaline and alkali, which are bases, and okay. likewise in group number 13 we have elements which have 3 valence electron in their outermost. Okay. So what a defined way how you have to write it is the property which repeats itself at regular intervals of time. The property which repeats itself at regular intervals of time in a periodic table is called as periodic property. वीरम ने बहुत सारे एग्जांपल दिए, ले उस सही भी था. Definition what it is there, the property which repeats itself, जो property खुद को repeat करे at regular intervals of time in a periodic table, वो क्या कहलाएगा? Periodic property. जैसे कि अभी एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ये एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वेट, ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना. ये तीनों के तीनों क्या है, मेटल्स हैं, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी लिथियम के बाद रिपीट हो रही है, सोडियम के बाद भी मेटालिक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है. तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया. वैसे ही देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब का क्या है, 1 है. तो ये यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी खुद को रिपीट कर रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक प्रॉपर्टी हो गया, है ना. व्हाट हैपन? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. So the property which repeats itself at regular intervals of time in a periodic table is called as periodic property. एक property जो खुद को repeat करे at regular intervals of time in a periodic
टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। वो चाहे आपके मेटालिक कैरेक्टर भी हो सकता है, नॉन मेटालिक हो सकता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हो सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये खुद को रिपीट करते हैं पीरियोडिक टेबल में पर्टिकुलर ट्रेंड में, या तो अलोंग द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप, खुद को रिपीट करते हैं। इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लियर डेफिनेशन? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी इशू इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टी डेफिनेशन? No, ma'am. No, na, clear na? You should be able to write in the exam by yourself. Then don't try to cram. Cram means रट्टा मारने की कोशिश मत करना बेटा। आप लोग बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, आप जितना समझ के जाओगे उतना इजी है। क्योंकि बाई चांस अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आया वर्ड टू वर्ड, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, so valence electron is the first property which we are going to discuss. Okay, ये एग्जांपल लिया मैंने, इसमें अगर आप देखोगे so what it is there along the periods, हम एक पर्टिकुलर सेकंड पीरियड का मैंने एलिमेंट्स लिया। आप यहाँ पे देखो पीरियड लिखा है, एलिमेंट लिखा है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल्स, मतलब शेल्स लिखा है यहाँ पे, टोटल शेल्स। तो आप इसमें एक चीज देखो, ये सारे एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, पीरियड को बिलोंग करते हैं। और एक और चीज आपको बता रही हूँ, जितना जो पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू पीरियड नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स। ओके, यहाँ पे लिख दे रही मैं पीरियड पीरियड नंबर is equal to number of shells। याद रखना इसको। ओके, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि अगर आपका पीरियड नंबर क्या होगा 1, तो उसका नंबर ऑफ शेल भी 1 होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ शेल्स, और अगर पीरियड नंबर 2 है तो सब उसका नंबर ऑफ शेल्स भी 2 होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? पीरियड नंबर से आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ। तो ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के, तो इनका शेल्स भी क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। इज इट क्लियर? इतना कंसेप्ट क्लियर है? Is the concept clear to you all? Yes, ma'am. Okay. अब आपको ये पता चल गया कि पीरियड नंबर किसके इक्वल रहता है, नंबर ऑफ शेल के। उसके बाद नंबर एलिमेंट्स में आते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट लिथियम से लेके नियॉन तक सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। यानी सब में कितने शेल्स है, टोटल 2 शेल्स है। ओके, एंड एटॉमिक नंबर तो लिखा है मैंने 3, 4, 5, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी मैंने लिख दिया बाजू में हर एलिमेंट का। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ट्रेंड देखो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी एक रेगुलर ट्रेंड चल रहा है। यानी कि अगर हम डाउन अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, the valence electron is increasing from 1 to 8. That means when you are moving from left to right in a periodic table, the valence electron will increase from 1 to 8. Okay, valence electron will increase from 1 to 8 if you move along the period. Okay, अब ये तो पीरियड की बात हो गई। अब आती है किस बारी, किसकी, ग्रुप की। अब ये मैंने कुछ एक ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट्स की बात की, ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात की। यहाँ पे ग्रुप 1 क्या है, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, अब ये जो है एलिमेंट्स, ये सारे के सारे ग्रुप के हैं, लेकिन इनका पीरियड नंबर अलग है, इसलिए इनका वैलेंस शेल भी अलग अलग है। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए इसका वैलेंस शेल 1 है। और लिथियम जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए वैलेंस शेल 2 है। सोडियम जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंस शेल इज 3। पोटेशियम इज फोर्थ पीरियड एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंस शेल इज 4। यानी कि they are belonging to the same group but their period is different. Okay, कैसे आप देख लो यहाँ पे, just see this, देखो ये हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन सबका पीरियड अलग अलग है ना। दिस इज बिलोंग टू फर्स्ट, दिस इज बिलोंग टू सेकंड पीरियड, दिस इज बिलोंग टू थर्ड, दिस इज बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। ओके, इज इट क्लियर? इतना ठीक है ना? अब बारी Yes, ma'am. अब ये एग्जाम, ये तो अरेंजमेंट होगा कि इसका वैलेंस शेल क्या है। अब एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मैंने लिख दिया फिर से। ओके, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाती है, कॉमन चीज देखो कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है,
सेम है, भले ही उन लोग अलग अलग पीरियड को बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ही ग्रुप के जितने एलिमेंट है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा. So then the important concept is here is that if the elements are belonging to same group, then their valence electron will be same. Yes. If the elements are belonging to the same group, then their valence electron will be same. अब मैंने आपको क्या बोला, indirect question भी आ सकता है और MCQ also you are going to have. So if I am suppose this question, wait, who is there in the background, please? So if I am asking, suppose I am asking you a question that if an element is belonging to group number 3, okay, if an 13, what can be the group number 2 ले लो. Arihant, are you there? Beta, if an element is Yes, ma'am. group number 2, what can be the valence electron? Ma'am, please repeat. If an element is belonging to group number 2, what can be the valence electron? 2. Yes, correct, good. Okay, so group number से आपको क्या पता चल सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल सकता है. तो यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं. ओके, आई एम राइटिंग हियर. ग्रुप नंबर से आप क्या पता लगा सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इफ ग्रुप नंबर if group number is 1 and 2 is 1 or 2, इस ग्रुप नंबर इज 1 and 2, देन या फिर आपका यहाँ पे ग्रुप नंबर छोड़ दे रही हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए. इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1 and 2, then It will belong to group 1 and group 2. yes, then group number is equal to valence electron. ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यानी कि अगर मैं कहीं पे आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है, तो आप समझ जाना कि उसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा, 1 या 2. अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा, इसलिए मैं बता रही हूँ. अब अगर आप बारी आती है, अब जरूरी थोड़ी है कि किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1, 2 या रहे. ओके, अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2, दैट इज 3 से लेके 8 हुआ. ओके, इफ वैलेंस है, यस, तो +10 करते जाना है आपको. इफ वैलेंस, okay, if valence electron is, okay, if valence electron is now let's just see. If valence electron is more than, why it is happening like this, valence electron, why it is, okay. अब याद रख लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 मोर देन 3 रहेगा, आपको क्या करना है, +10. अगर 1 and 2 रहेगा तो आपको ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा. लेकिन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 to 8, दैट मींस 3, 4, 5, देन यू हैव टू जस्ट राइट व्हाट, +10 यू हैव टू डू. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, आप क्लोरीन का मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, हु विल टेल मी? सॉरी, वेट, अक्षत टेल मी, अक्षत tell me the valence group number of chlorine. Ma'am, group number will be 7. Why 7? मैं अभी कुछ बोली आपको, 17, ma'am, 17. 17. Next, Darshan. Yes, ma'am. Tell me the group number of neon. हाँ, नियॉन. Yes. मैम Na होता है ना उसका?
हाँ, Any. नियॉन का any होता Ne, नियॉन, नोबल गैस. है any group number will be 4 भाई 4 का कैलकुलेट करके देखो. नो, वैलेंस का नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? Ma'am, may I tell? Yes, tell. Ma'am, 18. Yes, correct, good. Okay, if valence electron is more than 3, then group number is equal to valence electron plus 10. दिख रहा है स्क्रीन में? yes ma'am ओके, दिस इज द थिंग. ये याद रखना, ये एमसीक्यू वगैरह में आएगा आपको. बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 है तो आपका ग्रुप नंबर भी 1 या 2 होगा. और बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 3, देन यू हैव टू डू बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10. ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको पीरियोडिक टेबल देती हूँ, आपको बहुत इजी पड़ जाएगा. देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ. ये देखो, मैंने आपसे क्या पूछा? नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 8. 8 प्लस 10 कितना होता है? 18. देखो आ गया. वैसे अगर मैं फ्लोरीन का बोलूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाऊंगी तो क्या आएगा? 2 7, है ना? तो अगर मेरे को ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है. मोर देन 3 है, मोर देन 2 है, तो क्या हो गया यहाँ पे? 10 प्लस 7 17. ओके, यहाँ पे क्या? फिर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 8. तो कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाऊं तो 2 6 है. 2 6 है. तो अगर मैं इट इज अगेन मोर देन 2, देन इट इज what will be 2 10 plus 6, what it will be? 16. समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट? Yes, ma'am. बस इतना. मोर देन, यहाँ पे मोर देन 3 लिख दिया, इट इज मोर देन 2. मैम अपन ऐसा बोल सकते हैं हाँ, कि जब अपन if we are moving from up to down in periodic table, then Yes. valence shell is increasing. यस यस, अभी तो वही ट्रेंड है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है. वन प्रॉपर्टी यू अंडरस्टूड, इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. यही तो मजा है इस चैप्टर का. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रेंड समझ में आया? दैट मींस अलोंग द पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, whereas down the group valence electron remains the same. Same. यस, Yes, एंड ma'am. इससे रिलेटेड दो चीज आपको ट्रिक याद रखनी है कि पीरियड नंबर से हमको पता चलता है नंबर ऑफ शेल्स, या फिर आप इसमें लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो गेट अ बैलेंस शेल. ओके, और यू कैन ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस शेल, क्योंकि जितने शेल होंगे उसमें से बैलेंस शेल भी तो पता चल जाएगा ना. मैम बस ऐसे ही पूछेगा कि along the period shell नहीं, क्या वो हो बता रहे रही हूँ, इसलिए हाँ, इसलिए तो बता रही हूँ. ट्रेंड, अब ट्रेंड याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे कि क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ये बताओ. ट्रेंड आपको पता चलना चाहिए ना. पहले आपको फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में. तो वो वही कंसेप्ट है यहाँ भी. पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, फिर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप अप्लाई करोगे कि हाँ, जैसे यही एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी. सपोज लिथियम टू नियॉन, आपको क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दे दिया कि दिस एलिमेंट्स आर देयर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना? व्हाट विल बी द ट्रेंड of the valence electron in these elements. तो आपको बताना पड़ेगा from lithium to neon the valence electron increases from 1 to 8. So example के जरिए भी पूछ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है. तो आपको ये जो पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ट्रेंड है वो याद रखना पड़ेगा. ओके मैम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि नाम नहीं दिया रहता, सिर्फ XYZ दिया रहता है, हाँ, तब कैसे दिया रहता है, करेंगे? लेकिन एटॉमिक नंबर देगा या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देगा ताकि आप एटॉमिक नंबर पहचान. अगर ट्रेंड वाला Okay. क्वेश्चन पूछ रहा है तो या तो आपको एटॉमिक नंबर देगा, या फिर आपको ग्रुप नंबर देगा, पीरियड नंबर देगा, या फिर आपको कोई ऐसा हिंट देगा कि एलिमेंट आपको पहचाना जाए. बिना हिंट के आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, नहीं तो कैसे ट्रेंड आप पता करोगे? ओके, नेक्स्ट वैलेंसी. वैलेंसी में आ जाते हैं. अब आपको यही फिर से वही एग्जांपल रिपीट हो रहा है. तो देख लो, लिथियम टू बेरिलियम, आप देख रहे हो कि ये सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर भाई मतलब इंक्रीज हो रहा है 1 to 8 तक, तो वैलेंसी भी डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं रहेगी, है ना? आपको मैंने बताया था, आप शायद, नो सॉरी, आई हैव नॉट टेकन इन योर क्लास इन 9th में आपने पढ़ा होगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 होता है तो वैलेंसी भी 1 2 3 या 4 होगी. And if valence electron is more than 4, if valence electron is more than 4, then valency is equal to 8 minus valence electron. Okay, just 1 second.
गॉट इट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको पता है ना कैसे पता लगाते हैं? हाँ, Yes, ma'am. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 या 4 होगा तो उसी से रिलेटेड रहेगी वैलेंसी, यानी वैलेंसी भी क्या रहेगी 1 2 3 या 4। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो आप वैलेंसी पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्या कर देना है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का क्या है आपका 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5 3। इसका कितना है 6, ऑक्सीजन का 8 माइनस 6 2। क्लोरीन का कितना है 7, दैट इज 8 माइनस 7 1। नियॉन का कितना 8, 8 माइनस 8 0। ठीक है, अब ट्रेंड में देख लेते हैं। यानी ट्रेंड में अगर देखा जाए वैलेंसी का तो फर्स्ट द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट इन अ ग्रुप। अब ग्रुप की बारी आती है। ये तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो जाहिर सी बात है वैलेंसी भी सेम रहेगी। दैट मींस इन अ ग्रुप द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स सेम, whereas along the period the valency increases from 1 to 4 then decreases to 0. Is it done? So this was what valence electron and valency. Now another topic that is atomic size. Okay, atomic size की बात कर लेते हैं। atomic size अगर देखें yes Arihant, mute yourself. I am not keeping all you in the mute position because I want to interact, talk to you people. Please background का आवाज थोड़ा सा कम रखो। Okay, atomic size. Atomic size क्या होता है? Atomic size means distance. मैंने last class में भी आपको बताया, याद होगा तो, कि the distance between the nucleus and the outermost shell उसको बोलते हैं atomic size या फिर radius of an atom. जैसे एक सर्कल का रेडियस अपन निकालते हैं ना, सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस वाला निकालते हैं ना रेडियस, है ना, वैसे ही एटॉमिक साइज पे भी है। एटम का सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है, और उसके आखिरी में कौन है? वैलेंस शेल है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द एटम, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, तो वो है आपका क्या? एटॉमिक साइज। ये डेफिनेशन हो गया एटॉमिक साइज का। ओके, अब एटॉमिक साइज की बात करने के बाद फिर से वही एग्जांपल मैंने लिया लिथियम बेरिलियम वाला। सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सबका शेल सेम है, सबका एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, है ना। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी 3 होगा। 4 है बेरिलियम का तो एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, दैट मींस प्रोटॉन इज आल्सो 4 बिकॉज़ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक और चीज नोटिस करो, सबका शेल कितना है? This is the what is the condition Same. of shell? Is same, but the number of proton Yes, is but the number of proton is different. it is increasing or decreasing? Increasing. Yes, if the shell is same but the number of proton is increasing, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन बढ़ेगा। शेल उतना के उतना है, बट अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि साइज में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, यानी कि साइज विल डिक्रीज बिकॉज along the period yes size decreases because reason पूछेगा तो ये reason आएगा shell remains the same but the number of proton increases. Okay, so this is what trend along the period. The next is the case of प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो साइज कैसे कम होगा? बेटा शेल उतना का ही उतना है ना। अब बताओ एक ही क्लास में है आप लोग, है ना, एक क्लास में, अभी एक क्लास में है, अभी आप अकेले धक्का मार रहे हो एक दरवाजे को, ठीक है, और आप दो बच्चे आ गए तो क्या कौन से कंडीशन में ज्यादा पुल मिलेगा, पुश मिलेगा? दो। जब दो हाँ, तो वैसे ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, पहले वैलेंस शेल को सपोज यहाँ पे देखो 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, है ना, शेल कितना है? उतना का ही उतना सेम है। 2 शेल को पहले मिलके 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, है ना। अब बेरिलियम में जाओ, 2 शेल को मिलके 4 प्रोटॉन खींच रहे थे, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे ज्यादा अपना अट्रैक्शन होगा? इसमें होगा, है ना। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस उसको उतना अंदर की ओर खींचेगा ना। न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा तो अंदर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा? साइज डिक्रीज, रेडियस कम होता जाएगा ना, वैलेंसी ज्यादा फोर्स, है ना। ठीक है, वैसे यहाँ पे एटम का उसका वेट न्यूक्लियस में ही होता है ना? क्या हाँ वेट या हाँ मास वे आप बोल रहे हो ना, मास एटम का मास लिथियम, ये जो है लिथियम में तो मैम वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
क्या what is directly proportional? Atomic number is directly proportional to Number of protons and electrons. हाँ, in an atom. In an Yes, atom, ma'am, in an directly atom. proportional to proton. हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते एटॉमिक नंबर की? क्योंकि जब आयंस बनते हैं और उस आयंस की हम लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी पता लगानी पड़ती है, हमको प्रोटॉन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेरी करता है आयंस में, है ना? समझ रहे हो? जैसे अगर मैं सोडियम Na+ आयन की बात करूँ तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन देख के जाओगे तो आप क्या बोल दोगे? उसका एटॉमिक नंबर 10 है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, है ना? तो एक 11. सही क्राइटेरिया क्या होता है? प्रोटॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन कंडीशन के साथ वेरी करते रहते हैं, इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर के लिए कंसिडर नहीं करते, ठीक है? अब ये आपका अनदर है, ये बता यहाँ पे क्या है आपका, ये देखो कि एलिमेंट्स है, उनका एटॉमिक नंबर है, वैलेंस शेल। अब आपको ये ग्रुप में है लेकिन वैलेंस शेल अलग अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, वैलेंस शेल भी बढ़ रहा है, फिर साइज क्या हो रहा है? फिर भी साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे साइज क्यों बढ़ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन द नंबर शेल जो है वो छोटे मोटे शेल नहीं है। पहले क्या था? ये यहाँ पे देखो सेकंड शेल ही था सब में, लेकिन यहाँ पे क्या है? शेल जो है अब छोटे मोटे शेल नहीं है, एक है, इसमें 2 है, 3 है। जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है वैसे वैसे शेल की साइज भी बड़ी हो रही है ना? तो इतने ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट. This number of protons are not sufficient to pull the valence shell inside towards itself so that the size contract. मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता कि उनको अंदर की ओर खींच सके। इसलिए अब अंदर की ओर नहीं खींच पा रहा है सारे को, तो क्या होगा? उसका अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इन अ वे आई कैन टेल दैट down the group the effect of increase in number of proton down the group number of protons का जो effect है उसके ऊपर dominant हो जाता है कौन? increase in the valence shell. The effect of increase in the valence shell is dominant over the effect of number of protons. यानी valence shell का जो effect है वो dominate कर लेता है किसके ऊपर? effect of इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर डोमिनेट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो इफेक्ट होगा, अट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो शेल्स जो है आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करेंगे, अब वो बाहर की ओर जाएंगे और साइज जो है वो क्या हो जाएगा? दैट विल इंक्रीज। ओके, दैट मींस डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? ओके, अब मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, when the shell increases the number of अब मेटालिक प्रॉपर्टी, हाँ, मेटालिक प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कौन सा चार्ज लगता है? प्लस चार्ज। दैट्स व्हाई हम लोग इसको कौन सा नेचर बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट, अभी तक से हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करी, अब ये सारे के सारे क्या है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। So when we are talking about this third period elements, I have written the atomic number, electronic configuration. Okay, यहाँ पे valence shell छूट गया, कोई बात नहीं। Okay, valence electron देख के समझ में आ रहा है, its valence electron is what? 1, here 2, here 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. अच्छा, sorry. Okay, 7, 8. वैलेंस शेल सबका सेम रहेगा, 1, 2, 3, 4. valence shell is also 3. ये हो गया। अब सबका देखो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स है, इन सबका क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल। अब फिर से वही, मैंने यहाँ पे सबका 3 इसलिए लिखा है क्योंकि सारे के सारे एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इफ द पीरियड नंबर इज सेम देयर वैलेंस शेल विल आल्सो बी सेम। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द ट्रेंड along the period when you are moving, that is from left to right in the periodic table, when you see the tendency to lose electron decreases. Why? क्योंकि अभी आपने देखा, क्या देखा आपने? क्या यहाँ पे देखो रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है डाउन along the period, along the period आप जा रहे हो तो रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब रेडियस डिक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहेगा तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम के बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता, है ना? यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। अब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा।
इसी कारण से when you see the sodium, magnesium, aluminum, they are metal, whereas silicon is a metalloid and the rest other are non-metals. Okay, clear? मैम बट एक तरीके से देखें तो मैम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है. Electron और proton same है, then what you want to say in that? मैम तो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होगा वो मींस एटमोस्ट सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों का चार्ज. यस मैम. तो जो अभी एक शेल होगा वो तो अपने डिस्टेंस में जितना होना चाहिए उतने में ही रहेगा. शेल वही है, आप बोल रहे हो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी उतना ही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों लूज नहीं होंगे, ये बोल रहे हो? न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, ये बोल रहे हो आप? नो मैम, मेरा कहना ये है कि शेल दूर और पास क्यों जाएंगे जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स न्यूट्रल है. अभी एक चीज है, जैसे अभी मैंने आपको एक पोल बांध दिया, एक पोल में आप अकेले खींच रहे हो वीरम, तो आप उसको आसानी से अपने ओर खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे, खींच रहे हो आप, ठीक है, लेकिन अंदर आप अभी अरिहंत भी साथ में आ गया आपके, आप और अरिहंत मिलके खींच रहे, तो आसानी से पोल आपकी तरफ आ जाएगा, आएगा कि Yes, नहीं? ma'am. तो बोलने का मतलब ये है जितना ज्यादा आप अट्रैक्शन करोगे ना वो चीज, हाँ, मेरा बोलने का ये मतलब है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड हो जाएगा, मतलब उनके बीच का इतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि न्यूक्लियस से बंध जाएगा वो, कि न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा. अगर आपको उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा. इसलिए बोलते हैं अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया, उनके अंदर इतना प्यार हो गया, इतना अट्रैक्शन हो गया, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, नॉन मेटालिक नेचर हो जाएगा. लेकिन अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर है वो मेटल रहेगा ही नहीं, मेटल नहीं रहेगा, उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए. यस मेटलॉइड्स, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सेंस मतलब अट्रैक्शन कम करो, अट्रैक्शन लूज कर दो, मतलब कम कर दो या कमजोर कर दो, ऐसा, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अगर अब ये ग्रुप एलिमेंट्स है, अब ग्रुप 14 एलिमेंट है ना, ग्रुप 14 के अगर एलिमेंट्स की, हाँ आस्था व्हाट हैपेंड, आस्था व्हाट हैपेंड, आस्था यू रेज्ड योर हैंड बेटा, व्हाट हैपेंड? Ask me, I have not kept anybody in the mute position, everybody can talk. Okay, no issues. अब ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स है, अब ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो आप देखो साहब, अब आपको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. अब डाउन द ग्रुप अगर साइज बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप इफ साइज इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज हैपनिंग? अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट ब्रेक, है ना. अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस, अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर हो गए तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड इफ द अट्रैक्शन इज लेस, that means electron can easily come out, that means the metallic character will increase. Okay, that's why down the group metallic character increases. That's why here you can say carbon is non-metal, silicon is metalloid, germanium is also metalloid, but tin and lead are a metal. अब आप क्या देख रहे हो? ये सारे के सारे ग्रुप, इसीलिए हमको क्या होता है, ग्रुप नॉन मेटालिक का जो वो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमको ये वाला, यहाँ पे हमको ग्रुप 13 से लेके 18 तक हमको मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, मेटल भी मिलते हैं और नॉन मेटल्स भी मिलते हैं. मेजॉरिटी नॉन मेटल्स की रहती है. ओके, क्लियर है? मैम हाँ, मैम हाउ द कार्बन इज नॉन मेटल? क्योंकि कार्बन कभी भी लेता नहीं, लेता नहीं है, 4- साइन नहीं बनाता हूँ. मैं सीधा बोल सकते हैं कि 4+ नहीं बनाता, सॉरी 4+, नॉन मेटल ही होगा. 4+ नहीं बनाता. कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन इज अ नॉन मेटल ओनली. ओके, वो कभी भी आपको 4 फिर हमको ये पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न करनी पड़ेगी. पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न नहीं करनी पड़ेगी, आपको ट्रेंड याद करना पड़ेगा. और आप 9th में जो बेसिक आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद रखना था ना, वो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. वो बेसिक है, आपको दोनों क्लास के लिए चाहिए. ओके, मैम सिंबॉलिक याद, हम और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप ग्रुप 1 नहीं, ग्रुप 1 आप कुछ ग्रुप एलिमेंट्स आपको याद नहीं रखने, आपको बस ट्रेंड याद रख लोगे तो सब हो जाएगा आपसे. ठीक है, और जो बेसिक छोटा छोटे आइडियाज रहते हैं ना,
एटॉमिक नंबर से पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है कि नहीं? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना? पीरियड नंबर से पता चलता है नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप नंबर से हमको पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो ट्रिक जो अभी आपको मैंने यहाँ पे बीच बीच में लिख के गई थी ना स्क्रीन में, वो याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद रख लिया आपने और ट्रेंड याद रख लिया तो इससे रिलेटेड सारे ट्रिकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बस वही प्रैक्टिस कराऊंगी, कुछ नहीं कराऊंगी, ठीक है? क्लियर है? यस नॉन मैम। मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। माय गुडनेस, हु इज दैट? आई विल कीप यू ऑल इन द म्यूट। अरिहंत लूनिया में। Ma'am is continuously unmuting him. आपका ये जो है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और एक्सेप्ट करने पे कौन सा चार्ज लगता है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम लोग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी बोलते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सके। अब जो मेटल की प्रॉपर्टी है वही उसके ऑपोजिट होगा। तो सेम वही एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम वाला, इसमें सबका शेल क्या बोलते हैं? सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब शेल सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहेंगे वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक साइज जो है यहाँ पे अलोंग द पीरियड क्या होता है? छोटा होता है। साइज जो है छोटा होता है, साइज छोटा होगा अलोंग द पीरियड, तो क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया तो एक न्यूक्लियस आसानी से बाहर से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो न्यूक्लियस उसको आसानी से अपनी ओर खींच सकता है, यानी कि नॉन मेटेलिक नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए अलोंग द पीरियड क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप ट्रेंड देखो, मेटल से लेके ट्रेंड क्या हो रहा है? नॉन मेटल तक जा रहा है, ठीक है? क्लियर है? अब ग्रुप की Yes, बारी ma'am. आती है। अब ग्रुप में आते तो सेम वही एग्जांपल ले लो फिर से। ओके, इसमें भी वही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, वैलेंस शेल इंक्रीज हो रहा है, और साइज जो होती है डाउन द ग्रुप बढ़ती है। साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन घटेगा, यानी कि अट्रैक्शन घट गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा, और इसी कारण से मेटालिक कैरेक्टर जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये क्या था? मैम ट्रेंड। मैम इसको अगर एक तरीके से लिख दे, पूरा चार्ट में लिख के याद ये करें देखो तो वो मैंने ज्यादा बनाया है अच्छा है। चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए, ये रहा, अच्छा, ये रहा चार्ट, ठीक है? यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है मैंने, ट्रेंड अलोंग द पीरियड, ट्रेंड डाउन द ग्रुप, ये पूरा मैंने बना के दिया आपको। अगर आप पोर्टल में देखोगे तो ये वाला स्लाइड उसमें मैंने ऐड नहीं किया था, ये एग्जांपल वाला, ये तो अभी ऐड मैम किया। एक मिनट बैठ दीजिए। कौन सा टेबल चाहिए? यस मैम, टेबल चाहिए। ये देखो टेबल में मैंने सारा चीज वही लेफ्ट टू राइट, सिर्फ इसमें ना रीजन एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन मेन ट्रेंड जो है वो आपको लिखा रहेगा, ठीक है? अंडरस्टूड? तो इसमें आपको पूरा मिल Yes. जाएगा, ठीक है? जितना मैंने हो सका पूरा मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है? ये देखो, हाँ ऑक्साइड्स, अब आपको ये चीज मैंने बताना भूल गई। अब ऑक्साइड्स क्या होता है? अब डाउन द, अब यहाँ पे अलोंग द पीरियड क्या है? मेटालिक नेचर जो रहता है वो मेटालिक नेचर जो है वो घटता है, यानी कि और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, व्हेयरएज बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड घटेगा। इतना पता है ना सबको कि अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक मैम कैरेक्टर एक बढ़ता बार है। रिपीट। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना? मेटल क्या बनाते हैं? यस मैम, मेटल क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड। बेसिक, बेसिक हाँ रहता है। बेसिक